Morning to all of you. Dear students, as we yesterday we were know about the administration of the kings and we will know about subordinates, their subordinates, which is called Samanta, Mahamandaleshwar. ठीक है, तो और इन सब के बारे में हमने जाना and we will read about Prasasti and land grants. So Prasasti, Prasasti contain detail that may not be literally true, but they tell us how ruler wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahman who occasionally helped in the administration. So as you know that Prasasti it means which is the those things which is inscription, उसमें क्या इंस्क्राइब किए गए हैं, उनमें बताए गए हैं क्या किंग्स की क्या है, उनकी प्रशंसा की गई है, उसके एडमायर किए गए हैं, जो किसके बहुत कंपोज की गई हैं, किसके लर्न ब्राह्मण द्वारा. ठीक है, who occasionally helped in administration, which is administration में क्या है जो help करते हैं. ठीक है, king often rewarded Brahman by grant of land. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. So you can see in this one picture that this one is given by the kings to the Brahman. ओके, सो बिकॉज ऑफ ये प्लेट्स जो हैं वो एक रिकॉर्ड के रूप में हैं एंड देयर इज सील इन दिस प्लेट्स. इन प्लेट्स में क्या है, कॉपर की प्लेट्स में क्या है, सील भी हैं, ताकि ये क्या है उसकी एक कन्फर्मिटी हो जाए कि हाँ ये क्या है एक किंग के द्वारा ही क्या है दी गई है. In the 12th century, usually for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhan. तो Kalhan जो है which was a poet of Kashmir, and he used a variety of sources including inscription, document, eyewitness account and earlier histories to write this account, his account. जो उसने कल्हण ने जो संस्कृत में लिखी है अपनी, ठीक है, कल्हण वॉज अ पोएट, और उसकी जो संस्कृत पोएम है उसमें उसने बहुत सारी चीज़ों का वैरायटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस का उसने यूज किया है, डॉक्यूमेंट्स का यूज किया है, आई विटनेस लोगों के देखे हुए चीज़ों को उसने यूज किया है टू राइट हिज अकाउंट. अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज, ही वाज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज. तो उसने क्रिटिकल व्यू भी अपना यूज कर रखा है रूलर्स और उनकी पॉलिसीज़ पे. ठीक है, तो कल्हण जो है वो कहाँ का कवि है, कश्मीर का. ठीक है, वारफेयर फॉर वेल्थ. You may have noticed that each of these ruling dynasty was based in a specific region. At some time, they tried to control other areas. So, at that time, some of the kings who would occupy the other territories also. So they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in Ganga Valley. For centuries, a ruler belonging to the Gurjar, Pratiyar, Rashtragut and Pal dynasty. So as we know that because of the kings was और जो उनकी territories होती थी, they spread their kingdom. तो उन पे क्या है कि अलग अलग एरियाज़ को लेके क्या होता था, उन पे फोर्ट होता था, वॉर होता था. ठीक है, जैसे कि गंगा वैली को लेके राष्ट्रकूट और प्रतिहार और पाल डायनेस्टी पे क्या है बहुत टाइम तक क्या हुआ, उन पे वॉर चला. ठीक है, तो बिकॉज देयर वाज 3 पार्टीज एंड लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्राइपार्टीज स्ट्रगल. सो हिस्टोरियंस ने इसे क्या कहा है, ट्राइपार्टीज स्ट्रगल कहा है, बिकॉज ऑफ देयर वर 3 पार्टीज. ओके, राष्ट्रकूट, प्रतिहार एंड पाल. ठीक है,
As we will see, ruler also tried to demonstrate their power and resource by building large temples. So when they attack one another kingdoms, they often choose to target temples. So when they attack the other kingdom, so most of the time they target temples because of it is a sign of wealth. Okay, and मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे सुल्तान मोहम्मद गजनी ने क्या किया कि अफ़गानिस्तान का रूलर था 997 टू 1030 तक उसने रूल किया गजनी में एंड एक्सटेंड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सो ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर तो ही टारगेट्स क्या वेल्दी टेम्पल्स बिकॉज ऑफ वहाँ से उनको क्या गोल्ड सिल्वर और ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंट्स उनको वहाँ से मिल जाते थे ठीक है जो विच इज़ कॉस्टली ओके इंक्लूडिंग दैट सोमनाथ गुजरात का जो टेम्पल है उसने कई बार गुजरात के टेम्पल को क्या किया उसने उसको टारगेट किया एंड वहाँ से मच ऑफ वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे was used to create a splendid capital city at गजनी तो उसने अपनी गजनी में अपनी कैपिटल को बड़ा बनाने के लिए ठीक है उसमें क्या किया उसको गजनी उसने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल को कई बार टारगेट किया So Sultan Muhammad was also interested in finding out more about the people he conquered and interested a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. This Arabic work known as Kitab al-Hind remains an important source of historians. He consulted Sanskrit scholar to prepare this account. So जो सुल्तान महमूद है he was interested to finding out more about the people which is he occupy the territories. So उसने अपने एक जो स्कॉलर है अल बरूनी उसको उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या किया रखा और उसने जो अल बरूनी है उसने किताब अल हिंद जो है उसने बुक लिखी ठीक है जो कि यहाँ के लोगों के बारे में अल-बरूनी ने लिखा उसके बारे में ठीक है उसमें अदर किंग्स हु engaged in warfare included the चाहमान later known as चौहान तो चाहमान बाद में जो चौहान में बदले गए मतलब जाने जाते हैं who ruled over the region around Delhi and Ajmer. They attempt to expand their control to the west and the east where they were opposed by the Chalukya of Gujarat and the Gahadwals of western Uttar Pradesh. The best known Chahaman ruler was Prithviraj. So जो चौहान या चाहमान जो रूलर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस्ट नोन जो रूलर था विच इज़ नोन वाज पृथ्वीराज चौहान ओके यू नो अबाउट पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज थर्ड 1168 to 1192 तक उसने क्या किया कि वहाँ रूल किया एंड ही डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान महमूद गोरी इन 1191 इट इज़ बैटल ऑफ तराइन ठीक है 1191 में बैटल ऑफ तराइन का फर्स्ट वॉर हुआ था एंड सेकेंड जो हुआ था वो 1192 बैटल ऑफ तराइन हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था डिफीट हुआ था सो देखो बात यह है कि जितने भी लोग हैं जितने भी ये किंगडम्स में जितने भी रूलर्स रहे हैं इनने अपने टेरिटरीज को स्प्रेड करने के लिए क्या किया वॉर भी किए ठीक है और वॉर किए तो उन्होंने टेम्पल को भी ज़्यादातर उन्होंने क्या किया टारगेट किया तो हमने गजनी का जैसे एक एग्जांपल हमने लिया ठीक है उरय अक्लोजर वेट a closer look the cholas so we will know about हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे ठीक है so from Uray to Tanjavur so who was cholas and cholas there is a story of cholas that जो cholas थे minor chiefly family known as Muttriyar held power in the Kaveri delta तो कावेरी डेल्टा में मुट्टियार जो एक छोटा सा डेल्टा है ठीक है वहाँ पर एक उनकी जो है चीफली फैमिली रहती थी हेल्प पावर इन कावेरी डेल्टा दे वर सबनेट टू द पल्लवास किंग सो दे वर इनके सबनेट थे विच इज अंडर टू पल्लवास किंग्स कांचीपुरम विजयालय हु बिलोंग टू एंसेंट चीफली फैमिली टू चोलास फ्रॉम उरैयापुर कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुट्टियार इन द मिडिल ऑफ द नाइन्थ सेंचुरी तो 9th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया कि उस पर क्या किया अपना ऑक्यूपाई कर लिया ओके ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस
निशुम्ब सुदनी दिया। सो उन्होंने वहाँ टेम्पल बनाया, ठीक है। और अब एक टाउन जो है वो तंजावुर उन्होंने उसको बिल्ड किया। एंड टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुम्ब सुदिनी देवी का क्या है, उन्होंने टेम्पल वहाँ पर बिल्ड किया। द सक्सेसर ऑफ विजयालय कनकर्ड neighboring region and the kingdom grew in size and power. The Pandyan and the Pallavas territory to the south and north were made part of the kingdom. So देखो जो भी जितने भी सक्सेसर रहे हैं विजयलय कनकर्ड नेबरिंग रीजन पे क्या किया वॉर किया एंड अपनी पावर को और बढ़ाया, ठीक है। राज राजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर, तो चोलास का जो फर्स्ट रूलर जो था मोस्ट पावरफुल विच इज राज राजा फर्स्ट and become kings in and 85 and expand control over most of these areas. He also reorganized the administration of the empire. राज राजा सन जो है उसके बाद राज राजा सन का जो सन था which is known were राजेंद्र फर्स्ट, ओके राजेंद्र फर्स्ट था। सो continued his policy and even raided the Ganga Valley. He was also raided the Ganga Valley and Sri Lanka and countries and Southeast Asia, developing a navy for दिस एक्सपेंडिशंस। तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी उसने एक नेवी को भी नेवल उसने भी एक सेना बनाई, ठीक है। एंड उन क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू श्रीलंका और अदर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ पे जाने के लिए बिकॉज ऑफ वहाँ क्या ओशन है, तो वहाँ पर उसको उसकी क्या थी ज़रूरत पड़ती थी। सो बेसिकली हुआ है कि ये बात ये है कि जो चोलाज हैं उन्होंने उदयपुर और तंजावुर की सबसे छोटी फैमिली थी उस टाइम पे, वो सीफली फैमिली थी, ठीक है। वहाँ पर उनका तो क्या था राज्य था मुटियार डेल्टा पे विच इज़ कावेरी डेल्टा, ठीक है। वो पल्लवास के सबऑर्डिनेट थे और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया अपने आप उन पर धीरे धीरे अपना ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करें। सो यू कैन सी इन दिस वन उदयपुर तंजावुर, ये जो उदयपुर और तंजावुर यू कैन सी इन दिस वन मैप, ठीक है। ये उदयपुर है, ये तंजावुर है, ठीक है। ये गंगई कोनचूलपुरम है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उदयपुर और तंजावुर है। सो यू विल रीड दिस टॉपिक ओके टुडे।